اور جلالی نام ہے سب کو سلام۔ آج میں شکر گزار ہوں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک کا، جس نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر چوتھے کلمے کو سیکھ سکوں۔ ہاللیلویا۔ بس میں میرے عزیزو، یہ چوتھا کلمہ یسوع نے صلیب پر بولا، تو آج میرے اندر سے ہو کر وہی روح آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہاللیلویا۔ بس میں میرے عزیزو، یہ کلمہ بڑے غور، بڑے دھیان اور فکر سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کلمے میں جب ہم بولتے ہیں تو ہم ایک پوائنٹ جو یسوع مسیح کی الہی ذات ہے اس کو جدا کرتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹائم کے لحاظ سے میں اس ساری باتوں کو بیان کرتے ہوئے گزروں گا، تو آپ نے دھیان سے اور غور سے سننا ہے تاکہ آپ اس کلمے کو اچھے طریقے سے سمجھیں، تاکہ کوئی آپ سے اس کے متعلق سوال بھی کرے تو آپ بتا سکیں۔ تو مسیح میرے عزیزو، آئے ہم کلام مقدس کو کھولیں گے۔ مرقس کی انجیل 15 باب اور اس کی 33 آیت۔ مرقس کی انجیل 15 باب 33 تا 34 آیت۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آمین۔ مسیح میرے عزیزو، یہ کلمہ جو میں نے مرقس کی انجیل میں سے حوالے کو پڑھا ہے، یہ کلمہ یسوع مسیح نے جب صلیب پر کہا تو اوریجنل لفظ جو کہ یسوع مسیح نے صلیب پر کہے ارامی زبان میں کہے تھے اس کلمے کے، اور یہی کلمہ مرقس کی انجیل میں انہی لفظوں میں مرقوم ہوا ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہے ہیں۔ اور یہ مرقس کی انجیل سب سے پہلی لکھی جانے والی انجیل ہے، اور اس کے بعد لوکا کی انجیل میں بھی، متی کی انجیل میں بھی ہم اس کلمے کو دیکھتے ہیں۔ تو مسیح میرے عزیزو، یہاں پر جب ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو جب ہم اس کا ٹائٹل سنتے ہیں کلمے کا، تو وہاں پر ہمیں ٹائٹل کیا ملتے ہیں؟ کفارہ کا کلمہ، فدا مندی کا کلمہ، جدائی کا کلمہ۔ مسیح میرے عزیزو، ہم کفارہ کے متعلق دیکھیں گے، جدائی کے متعلق دیکھیں گے۔ تو مسیح میرے عزیزو، اپنے ٹیکسٹ کے حساب سے جس طرح آیت ترتیب سے ہمیں چلاتی ہے، ہم اسی طرح سیکھتے ہوئے بڑھیں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہے جب دوپہر ہوئی، یعنی کہ دوپہر کے وقت اندھیرا، یہ کیسا اندھیرا ہو سکتا ہے؟ اور لکھا ہے تیسرے پہر کے قریب، اور یہودی پہر 3 گھنٹوں کا ہوتا تھا، ایک پہر 3 گھنٹوں کا، اور رومی پہر جو تھا 4 گھنٹوں کا ایک پہر تھا، اور 6 بجے وہ پہر شروع ہو جاتا تھا، شام کو 6 بجے، شام 6 سے لے کر اگلے 6 بجے تک وہ پہر 4 کمپلیٹ، اور یسوع مسیح صبح 6 سے لے کر اگلے تیسرے پہر یعنی کہ 3 بجے کے لگ بھگ یہ تیسرا پہر قرار دیا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ تیسرے پہر لکھا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے جب یہ کلمہ کہا بڑی آواز سے چلا کر کہا، یہ بڑی آواز کیسی دردناک آواز ہوگی؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ یسوع مسیح جب گتسمنی باغ میں تب ہی سے پیاسے تھے، تب ہی سے دکھوں میں گزر رہے تھے؟ میں ان دکھوں کو بیان نہیں کروں گا، میں چند لفظوں میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا، کیونکہ وہ دکھ، وہ مصیبت ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، اور تیسرے پہر کے قریب ہے، یہ 3 بجے کے لگ بھگ ہے۔ ایک انسان ہوتے ہوئے، ایک جسمانی بدن رکھتے ہوئے جب ہم پر اس قدر دکھ آتے ہیں یا اس قدر مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر ہم بھی اس طرح الفاظ کو پکار نہیں سکتے جس طرح وہ کہہ رہا ہے بڑی آواز سے چلا کر۔ یہ بڑی آواز اندر کے کلیجے تک کس کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ آواز یسوع مسیح نے صلیب پر پکار لگا، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مسیح نے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اسے دھیان سے سننا ہے، چھوڑ دیا لفظ جدا ہو سکتا۔ تو مسیح میرے جسو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو سے باپ سے جدا ہو گئے۔ ہاں، اس لفظ کو کہتے ہوئے آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ جسمانی بدن رکھتے ہوئے باپ سے جدا ہوئے، نہ کہ ہم ٹرینٹی سے خداوند یسوع مسیح کو علیحدہ کرتے، نہ کہ ہم الہی ذات سے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس میں سے بیٹے کو جدا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ
बदन की सूरत में था और वो बदन की हालत में था जब यीशु मसीह ने कलमा पढ़ा, क्या बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये ज़बूर 22 का इक़्तिबास है, जो कि ज़बूर 22 की पहली आयत है। ऐ मेरे खुदा लोग क्या कहते हैं, मुझे क्यों छोड़ दिया। ये उस इक़्तिबास को बुला रहा है। और ज़बूर 22 पूरा जब हम पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक पढ़ते हैं तो मैं इसकी तफसीर को देख रहा था। तो मैंने जब देखा उस तफसीर को तो मैंने मालूम किया कि ये पूरा ज़बूर जो सा है यीशु मसीह की पेशगोई को ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन वो ज़बूर दाऊद अपने मतलब भी लिख रहा है। अगर हम उसके कंटेक्स्ट को पढ़ें, उसके मतलब देखें तो फिर हमें ये ज़बूर, ये कलमा जो यीशु मसीह सलीब पर बयान करते हैं वाज़िया होता जाएगा। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इसके दो बड़े मक़सद हैं जो आपके साथ मैं बयान कर रही हूँ। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बस में मेरे अज़ीज़ों, जब पहला मक़सद दाऊद के मुताबिक जो दाऊद जिस हालत में था उसने जब ये बयान किया वो दर्द की हालत में था, तकलीफ की हालत में था, पेन की हालत में था। तो जब भी कोई इंसान दर्द की हालत में होता है, दुख की हालत में होता है, तकलीफ की हालत में होता है, तो उसके ऊपर जितने दुख खुदावंद यीशु मसीह पर थे उस पर होते। दाऊद भी ये कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कि वो पेन, वो दर्द जब किसी भी इंसान पर आती है तो वो यही समझता है कि मेरे खुदा ने शायद मुझे छोड़ दिया। तो यीशु मसीह भी इधर यही बयान करना चाह रहे हैं। आप सोचते होंगे ये कैसी बात है, लेकिन ये बात अगर आप अपनी लाइफ में रख कर देखें तो फिर आपको मालूम होगी कि किस तरह की बात दाऊद कह रहा था। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, अगर इसका दूसरा मकसद ये था कि हबक्कूक की किताब में से जो हम टेक्स्ट को देते हैं, जो कि मैंने पहले टाइटल में कहा कि कफारा का कलमा, तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों कफारा लफ्ज़ सुनकर हमारे अंदर कुछ ना कुछ जज्बो तो आती होगी। मेरे अंदर तो आई थी, आपके अंदर शायद आई हो या ना आई हो, क्योंकि कफारा का लफ्ज़ जो कफारा है ये पुराने एहरामे से चलता आ रहा है। जब शरीयत मिली थी उनको तब से चलता आ रहा था। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये कफारा क्या था, ये दो बलि दिए जाते थे जो कि खता की कुर्बानी के लिए, गुनाहों की कुर्बानी के लिए दिए जाते थे। एक को जो कुर्बान किया जाता था उसके ऊपर अपने हाथों को रखा जाता था और दूसरे को पहले तो ऊपर कूड़ा डाला जाता था, कूड़ा डालकर एक को मारते हुए कूदते हुए बाहर ले जाते थे शहर से और पहाड़ पर से नीचे गिरा देते थे। एक बड़ा ये और दूसरा बड़ा क्या था कि वो उसको कुर्बान करते थे और जलाते थे। ये था दो बड़ा, ये है कफारा जो कि गुनाहों के लिए दिया जाता था। और यीशु मसीह ये दोनों बड़े बन गए, हालेलुया, ये दोनों बड़े बन उसको मारते हुए लाए और बाहर ले गए और इसी को कुर्बान किया है। ये यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए कफारा दे रहे हैं। तो मसीह मेरे से जुदाई, जब हम जुदाई कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, हबक्कूक की किताब में से हम टेक्स्ट को देते हैं और वो टेक्स्ट क्या है, हबक्कूक पहला भाग उसकी 13 आयत कि खुदा की आंख पाक है, बदी को देख नहीं सकती। मसीह मेरे से जब हम इस टेक्स्ट को देखते हैं तो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर सारी दुनिया के गुनाह आ चुके थे और इसलिए यीशु मसीह ने यह कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो मसीह में मेरे जो फिर हम पैदाइश से लेकर मसीह के आने तक और आज तक के वाक़यात को भूलकर ये आयत को लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर हम उस आयत को पूरा पढ़ें तो मेरे साथ पढ़ ही लेते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि वो किस वे में और किस तरह वो पूरी आयत को कंप्लीट कर रहा है। हबक्कूक पहला बात तेरी आंखें ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता और कजर फतारी पर नगाह नहीं कर सकता, फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है, फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है। और जब शरीर अपने से ज्यादा शादी को निकल जाता है तो तू क्यों, ये दगाबाजों पर नजर किया है, ये भी गुनाह में शामिल नहीं है मेरे चीजों। क्योंकि अगर हम पहले ही देखें तो नूह के दिनों में जब गुनाह बढ़ गया तो खुदा ने किधर से देखा, खुदा ने आसमान से निगाह की और देखा कि जमीन पर बदी बढ़ गई। यानी कि खुदा बदी को देखता है लेकिन बदी को देखते हुए उस पर रिएक्ट करता है। अगर हम इस पूरे बात को पढ़े तो उधर वाज़िया करता है कि अगर हम गुनाह करेंगे तो खुदा उस पर एक्शन लेगा और यही
गुनाह यीशु मसीह पर आ गए और इन्हीं गुनाहों की वजह से और इन्हीं गुनाहों को बयान कर रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बस में मेरे दोस्तों वो बदन किस हालत में था और बदन में दुख सह रहा था और वही दुख सह रहा था जो मेरा और आपका बदन है। तो इसी के मतलब अगर हम देखें आदम के मतलब तो जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा से जुदा हो गया। ये जुदाई खुदा से हुई। हमें वहां पर वाज़ेह नहीं मिलता कि आदम किस कदर रोया होगा, किस कदर पछताया होगा, लेकिन जब हम दाऊद की लाइफ में जाकर गुजरते हैं, उसकी लाइफ में घुसकर देखते हैं, फिर हमें मालूम हो जाता है कि वो दर्द, वो तकलीफ क्या होगी। क्योंकि जब दाऊद को खुदा ने छोड़ा तो वो चला उठा, जब खुदा ने दाऊद से बात करना छोड़ दी तो वो चला उठा। तो इसी तरह खुदा ने यीशु मसीह भी गुनाह हमारे लिए हुए था और जब हमारे गुनाहों की वजह से वो कुर्बान हुआ, क्योंकि अपराधियों का आबादी से साफ साफ वाज़ेह करता है, तो उसने हमारी खुदाएं अपने ऊपर दी और वो पाप जो मेरे और आपके थे उसने अपने बदन पर ले ली। हालेलुया। तो मसीह में ये आज हमें क्या मिलता है कलमा सुनने से? हमें ये मिलता है खुदा यीशु मसीह ने वो गुनाह को हटाकर वो जुदाई को खत्म कर दिया जो आदम से चली आती थी, तो हमारा बाप के साथ मेल करा दिया, दोबारा से मिलाप करवा दिया। तो आज हमें चाहिए कि हम उस जुदाई को अगेन न करें, हम गुनाह की वजह से वो जुदाई दोबारा बाप में न डालें, दोबारा से न डालें, बल्कि हम अपनी लाइफ को उसी तरह गुजारें जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने हमारा रिलेशन बाप के साथ करवाया। आमीन। आज का ये कलमा हम सबकी जिंदगियों में